آج میں نے جس آیت کریمہ کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے اس کو سمجھنے سے قبل ایک بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اگر دنیا میں کسی شخص کا خوف ہوتا ہے اور کوئی شخص ایسا ہوتا ہے ہم جس کے حکم کے تابع فرمان ہوں تو ہر کام اس کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں، جو اسے پسند ہو اسے بجا لاتے ہیں، اس کی ناپسندیدگی جس چیز میں ہو اس چیز سے رک جاتے ہیں، جو چیز اسے خوش کرے اس کام کو کرنے میں پیش قدمی کرتے ہیں، اور جو چیز اس کی ناراضگی کا سبب بنے اس چیز سے کوسوں دور جاتے ہیں۔ اب وہ شخص ہماری مجلس میں موجود ہو تو بھی ہمارا یہی رویہ ہوتا ہے، اور اگر وہ شخص ہماری مجلسوں میں، ہمارے گھروں کی چار دیواری میں، یا پھر جس جگہ ہم تنہائی اور گوشے میں ہوں اس جگہ موجود نہ ہوں تو بھی ہمہ وقت ہمارے دل میں خطرات رہتے ہیں کہ اگر ہم اس کی منشا اور اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو اس کے جو غلام اور اس کے جو کرمچاری ہیں وہ ہمارے کاموں کی جا کر کے اس کو خبر دیں گے، اور یہ خبر اس کے لیے ناراضگی اور ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گی۔ اتنی بات اگر ہم نے سمجھ لیا تو اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ارشاد ربانی ہے جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تمہاری نشست و برخاست کو، تمہاری خلوت اور جلوت کو، تمہارے مشائل اور مفائل کو، تمہاری صبح تمہاری شام کو، تمہاری رات تمہارے دن کو، تمہارے چلنے پھرنے کو، اور تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس کا علم اور اس کی قدرت تمہارے تمام کاموں کا احاطہ کی ہوئی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم نے گفتگو وہیں سے شروع کی کہ اگر ہم کسی کے پاس کام کرتے ہیں اور دنیا میں کسی کا ہم پر احسان ہوتا ہے تو ہم اس کی رضا جوئی میں اپنی زندگی گزارنے کو طرّ امتیاز سمجھتے ہیں۔ کسی شخص نے ہمارا کوئی بگڑا ہوا کام بنا دیا تو وہ شخص کیا پسند کرتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اس کی پسندیدگی اور اس کی ناپسندیدگی کو ہم بھنانے میں لگ جاتے ہیں۔ کسی شخص نے آڑے وقت میں ہم پر کوئی احسان کیا تو اس کے احسان کا بدلہ ہم احسان سے چکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن آج ہم ان اولیاء کرام، اولیاء کبار کے آپ کے سامنے چند واقعات پیش کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح سے ہم سبھی کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے خالی ہو چکی ہے، کیا ان لوگوں کی زندگی بھی خدا تبارک و تعالیٰ کے خوف، ڈر اور اس کے قہر و غضب سے خالی تھی؟ جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم 3 ہو تو چوتھا خدا ہے، اگر تم 4 لوگ ہو تو 5واں خدا ہے،
یعنی 3 اگر سرگوشیوں میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں تو یہ خیال نہ کرے کہ ان کی گفتگو کوئی سن نہیں رہا ہے، کیونکہ ان 3 کے ساتھ اللہ کی قدرت موجود ہے، اللہ کی عظمت موجود ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز یہ وہ عبادت ہے کہ جس عبادت میں ہمارے امام اعظم امام الائمہ سراج الغمہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب کھڑے ہوتے تھے تو کتابوں میں مذکور ہے کہ لوگ دیکھنے والے کہتے تھے کہ یہ کوئی شخص نہیں بلکہ پیڑ کھڑا ہوا ہے۔ نہ تو ان کے جسم میں کوئی حرکت ہوتی تھی، نہ ہی کسی طرح ہاتھ اور پیر ہلتے ڈلتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ تو آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور محراب کے اوپر سے ایک سانپ آپ کے سامنے گر جاتا ہے۔ اس زہریلے سانپ کو دیکھ کر کے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے تو سارے لوگ گھر چلے جاتے ہیں، لیکن یہ امام الائمہ، یہ سراج الغمہ امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصلی پر اسی طرح نماز پڑھتے اور پڑھاتے رہے جس طرح سانپ کے نیچے اترنے کے پہلے نماز پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی جنگ میں آپ کو بھالا لگا اور صحابہ کرام جب اس بھالے کو نکالنے کی کوشش کرتے تو حضرت مولا کائنات کو بے پناہ تکلیف ہوتی۔ کچھ لوگوں نے باہم مشورہ کیا کہ جب مولا نماز کی حالت میں کھڑے ہوں تو ان کا نیزہ اور بھالا نکال لیا جائے۔ جب حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ان کے بھالے کو نکالا گیا تو انہیں چیوٹی کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہ ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب جنگلوں میں جا کر کے عبادتیں کرتے تو اس طرح نماز پڑھتے کہ جانوروں کا ہجوم آپ کے سامنے سے نکل جاتا اور آپ کو اس بات کی خبر بھی نہ ہوتی کہ میرے سامنے سے کوئی گزرا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں پر بھی 10ویں شب میں اللہ کی عبادت اس انداز میں کر رہے ہیں کہ نہ تو انہیں دشمنوں کے دھاردار ہتھیار کا خوف ہوا اور نہ ہی انہیں اپنے بچوں کی شہادت کا غم لاحق ہوا، بلکہ امام حسین ہو، مولا کائنات ہو، ابو بکر صدیق ہو یا پھر دنیا کا کوئی بھی شخص ہو جو اللہ اور رسول کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، جب وہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ دنیا اور ما فیہا ہر چیز کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضر ہو جاتا ہے جس طرح سے حاضر ہونے کے لیے نبی کونین صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرماتے ہیں، اعبد اللہ، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ کس طور پر؟ اس طور پر فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تمہیں یہ خیال نہ پیدا ہو پائے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ خیال پیدا کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ جب صحابہ کرام نماز پڑھتے تو ان کی یہی کیفیت ہوتی، جب صالحین نماز پڑھتے تو ان کی یہی کیفیت ہوتی، جب اللہ کے نیک بندے عبادت میں کھڑے ہوتے تو ان کی یہی کیفیت ہوتی۔ اور یہی سبب ہے کہ ان کے سامنے سے موذی جانور گزر جائے انہیں خبر نہیں، ان کے جسم سے ہتھیار نکال لیا جائے انہیں خبر نہیں، اور کل کا سورج خاندان کی شہادت کو نمودار ہوگا لے کر کے، اس کے باوجود رات کی نماز اس قدر انہماک اور اشتغال کے ساتھ امام حسین پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی اسی حدیث کی روشنی میں کہ اے حسین، نماز پڑھنا تو یہ خیال کرنا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ خیال نہ پیدا ہو پائے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ ضرور یقین کر لینا کہ تم اللہ کو دیکھو نہ دیکھو، خدا تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ
ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु रात में गर्दिश कर रहे हैं। वक्त का अमीरुल मोमिनीन, गैर मुनक़सिम इस्लामी सल्तनत का बेताज बादशाह, जिसके सामने कैसर व किसरा जैसे लोग खड़े होने को थर्राए, जिसके सामने अच्छे अच्छे लोगों की ज़बानें बंद हो जाए, जो रसूलुल्लाह की नाफरमानी का फ़ैसला ज़बान से नहीं अपनी तलवार से करे, जो सहाबा इकराम के दरमियान अमीर होने की हैसियत रखे, जो सहाबा इकराम के दरमियान रसूलुल्लाह का सच्चा नाइब और जानशीन होने की हैसियत रखे, रात की तारीकियों में जब अपनी सल्तनत में और अपनी रियाया के दरमियान वो लोगों की खबरगिरी के लिए निकलता है, तो एक जगह से एक माँ और एक बेटी की गुफ्तगू की आवाज़ आती है। वो माँ और बेटी का कारोबार दूध बेचने का होता है। माँ बेटी को मशवरा देती है कि ए बेटी, दूध में पानी मिला दे। बेटी अर्ज़ करती है कि ए अम्मी जान, अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म ने दूध में पानी मिलाने से मना किया है। माँ कहती है बेटी, घर की चार दीवारी के अंदर हम और तुम कैद हैं और रात की तारीकी है, सिर्फ आसमान का सितारा और आसमान का चाँद हमें देख रहा है। यहाँ तो ना अमीरुल मोमिनीन है, ना कोई उमर है, तुझसे भला कौन मना कर रहा है, तू दूध में पानी मिला दे। तो ये फर्माबरदार बेटी, ये अल्लाह की बंदी, 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ने वाली बच्ची अपनी माँ से कहती है कि ए माँ, अगर अमीरुल मोमिनीन वक्त का खलीफा नहीं देख रहा है तो कायनात का रब्बे आलम, रब्बे परवरदिगार और खालिक कायनात देख रहा है। अगर अमीरुल मोमिनीन की निगाह से हम बच गए तो अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत व कुदरत से हम कैसे बचेंगे। फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु उस घर के बाहर खड़े होकर के माँ और बेटी की ये पूरी गुफ्तगू समाप्त कर रहे थे। सुबह जब हुई तो फ़ारूक आज़म ने माँ और बेटी को बुलाया और फिर कहा कि मैं तुम्हारी इस बच्ची की शादी अपने फला लड़के के साथ करना चाहता हूँ, क्या तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बच्चे के साथ करोगी। फिर जब आगे ज़िंदगी गुजरती है तो इसी बच्ची की नस्ल से वक्त का खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश होती है, जो फ़ारूक आज़म के तमाम ज़वाबित और कवायद को अपने दौरे हुकूमत में नाफिज कर देते हैं और पूरी इस्लामी सल्तनत को उमर फ़ारूक आज़म के कवायद का ग़ुलाम बना देते हैं। और आगे ज़िंदगी बढ़ती है जब, तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबियों की हमको इस तरह से दास्तान मिलती है। और फिर हम और आगे जब बढ़ेंगे तो औलिया किबार में से, ताबईन में से, तबे ताबईन में से हमें बेशुमार लोगों के ऐसे वाक़यात सफ़हात पर बिखरे हुए नज़र आएंगे कि जिनको पढ़ करके हमारे दिलों की कैफियतें बदल जाए और जिनको देख करके हमारी नज़रें आराम और ठंडक पाएँ। बिला शक व शुबा उन अजीम बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग का नाम है हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपने तमाम मुरीदों में से एक मुरीद को बेपनाह तरजीह देते हैं। उस मुरीद की हर बात का लिहाज करते हैं, उस मुरीद के हर कौल व फ़िल पर गाढ़ी नज़र रखते हैं, उस मुरीद की एक एक हरकत और एक एक सकनत पर आप पूरी तवज्जो देते हैं। लेकिन जो दीगर मुरीदीन और दीगर आपके शागिर्द थे, उन लोगों के दिल में ये बात थोड़ी सी खटकती है। एक फितरत होती है कि जब मैं अपने किसी शागिर्दों में एक शागिर्दों को तवज्जो दूँ तो बाकी शागिर्दों को लगेगा कि हज़रत लगता है हम पर तवज्जो कम दे रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर किसी एक पर कोई अल्लाह वाला तवज्जो देता है तो उसके अंदर तवज्जो देने वाली कोई बात मौजूद होती है। अगर इमाम हुसैन को हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बच्चों पर तवज्जो देते हैं तो बिला शक व शुबा इमाम हुसैन के अंदर कोई ऐसी बात है। अगर मौलाए कायनात को सारी दुनिया के वलियों का इमाम बनाया गया तो बिला शक व शुबा मौलाए कायनात में कोई ऐसी बात है, और वो बात यह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए अली, मैं जिसका मौला हूँ उसका तू भी मौला है। अगर इमाम हुसैन को हम शहीदों का इमाम मानते हैं तो बिला शक व शुबा इमाम हुसैन के अंदर वो इमामत की बात है। गौसे आज़म को हम करामत का इमाम और बुजुर्गी का इमाम मानते हैं तो बिला शक व शुबा गौसे आज़म के अंदर वो बातें मौजूद हैं कि जिन बातों के मद्देनज़र लिहाज रखते हुए तमाम औलिया इकराम ने अपनी गर्दनें उनके सामने झुका दी। और मेरे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने इरशाद फरमाया कि ये आंखें, ये सर, ये दिल, ये जिगर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। जब हमने औलिया इकराम की जब बातें देखी तो हमको तरह तरह के ये वाक़यात नज़र आए। हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने तमाम शागिर्दों में एक शागिर्द पर बेहतर तवज्जो देते थे, उसके हर फेल पर नज़र रखते थे, उसके उठने और बैठने पर नज़र रखते थे। दीगर शागिर्दों को ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। एक दिन हज़रत जुनैद बगदादी के सामने सारे शागिर्दों ने मशवरा करके
आपस में आकर के एक बात रखती, और वो बात ये रखी कि हुजूर आप फला शागिर्द पर बड़ी तवज्जो देते हैं जब भी हम लोग आपकी तमाम बातों को मानते हैं। हुजूर आप फला शागिर्द के एक एक कौल फेल पर नज़र रखते हैं जबकि हम लोग भी आपकी तमाम बातों को मानते हैं, तो फिर क्या वजह है कि आपकी तवज्जो हम लोगों पर उस शख्स से कुछ कम होती है और उस पर आपकी तवज्जो हम लोगों से ज़्यादा होती है। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उस शख्स पर अगर मेरी कुछ तवज्जो है, वो तालिब इल्म पर मेरी अगर तुम लोगों से ज़्यादा तवज्जो है, तो बिलाशुबा वो तवज्जो का ज़्यादा मुस्तहिक है। इरशाद फरमाते हैं, और मैं उसको आज तुम्हें इस मजलिस में साबित करके भी दिखाता हूँ। चंद मुर्गियाँ मंगाई जाती हैं और चंद छुरियाँ हज़रत जुनैद बगदादी मंगाते हैं। एक तालिब इल्म छुरी लेकर के आता है और एक तालिब इल्म चंद मुर्गियों को लेकर के आता है। एक एक मुर्गी आप एक एक शागिर्दों के हाथ में देते हैं और एक एक चाकू एक एक शागिर्दों के हाथ में देते हैं, और उस शागिर्द के हाथ में भी जिस पर आपकी तवज्जो ज़्यादा होती है एक छुरी देते हैं और एक मुर्गी देते हैं, और सभी से इरशाद फरमाते हैं इन सारी मुर्गियों को आप लेके जाओ और ये अपने हाथ में चाकू लेकर के जाओ और इन मुर्गियों को वहाँ ज़ब्ह करना जहाँ पर तुम्हें कोई देख ना रहा हो। सारे शागिर्द उठते हैं और एक एक कोने में जा करके जहाँ पर चारों तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो कोई नज़र नहीं आता, वो शागिर्द लोग अपनी चाकू से अब एक एक अपनी अपनी मुर्गियों को ज़ब्ह कर देते हैं और फिर हलाल की हुई मुर्गी हज़रत जुनैद बगदादी की बारगाह में लेकर के हाजिर होते हैं। लेकिन वो शागिर्द जो हज़रत जुनैद बगदादी की तवज्जो का मरकज़ था, वो शागिर्द जो जुनैद बगदादी की खूब तवज्जो हासिल करता था, वो शागिर्द जो जुनैद बगदादी की मोहब्बत था, वो शागिर्द जो जुनैद बगदादी को हर लम्हा अजीज़ था और महबूब था, वो अपना ज़िंदा मुर्गी सामने लेकर के आता है और चाकू एक हाथ में बगैर खून लगा हुआ लेकर के आता है। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे शागिर्दों को देखते हैं तो उनके हाथ में मुर्गी कटी हुई होती है और जो चाकू होता है वो खून आलूद होता है, लेकिन उस शख्स के हाथ में देखते हैं तो मुर्गी ज़िंदा होती है, सलामत होती है और चाकू खून आलूद नहीं होता। सबके सामने हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं कि तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने अपनी अपनी मुर्गियाँ कहाँ ज़ब्ह की? तो सारे लोगों का जवाब आता है, हुजूर मैं फला पहाड़ के पीछे गया, चारों तरफ देखा कोई नहीं दिख रहा था, मैंने इस मुर्गी को वहाँ पर ज़ब्ह कर लिया। किसी ने कहा, हुजूर मैं समंदर के पीछे गया, वहाँ पर चारों तरफ देखा कोई नहीं देख रहा था, मैंने अपनी चाकू से इस मुर्गी की गर्दन को ज़ब्ह कर दिया। और फिर इस शख्स से जब हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम जिंदा मुर्गी लेकर के वापस क्यों चले आए, तो अर्ज़ करता है, हुजूर मैं घर में भी गया, मैं समंदर के पीछे भी गया, मैं पहाड़ के पीछे भी गया, लेकिन जहाँ भी गया दुनिया का इंसान तो वहाँ नहीं मिला, अल्लाह की कुदरत मुझे वहाँ ज़रूर नज़र आई, अल्लाह की बसारत मुझे वहाँ ज़रूर नज़र आई। मुझे कोई नहीं देख रहा था लेकिन अल्लाह की अज़मत देख रही थी, मुझे कोई नहीं देख रहा था अल्लाह की कुदरत देख रही थी, मुझे कोई नहीं देख रहा था अल्लाह का जलवा देख रहा था। और जब अल्लाह मुझे देख रहा है तो बंदों की मुझे क्या फिक्र करना है। वह हुआ माकुम ऐना मा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, तुम जहाँ कहीं बोलोगे अल्लाह तुम्हें देख रहा होगा और अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। बिला शक व शुबा ये बुजुर्गों का वाकया हमें इस बात की तरफ पैगाम देता है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में हर लम्हा कोई भी अमल करें तो ये ख्याल करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़रूर देख रहा होगा। हज़रत सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैह, ये मुल्क हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी सिजज़ी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, सब जानते हैं आपको कि आप कौन हैं। आपके मुरीद और खलीफा अकबर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी बख्तियार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी सिजज़ी के आप पहले खलीफा हैं, मुरीद हैं। और बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश ये आपका मुरीद हुआ है और आपका खलीफा हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुरीद और खलीफा हुए हज़रत कुतुबुद्दीन काकी बख्तियार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और बादशाह अल्तमश शमशुद्दीन ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैह के मुरीद और उनके शागिर्द हैं। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैह का विसाल हो जाता है, और जब जनाजा दिल्ली के मैदान में रखा गया तो आपके एक मुरीद ने आकर के ऐलान किया कि मेरे हुजूर ने आखिरी वक्त में एक वसीयत की थी, मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा जिसकी असर की सुन्नत कभी कज़ा ना हुई हो, मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा जिसकी रात की तहज्जुद कभी कज़ा ना हुई हो, और मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा जो बगैर वज़ू के आसमान की तरफ निगाह उठा करके कभी ना देखा हो।
हज़ारों लाखों के मजमे में एक इंतशार मच गया कि आज के दौर में ऐसा अल्लाह वाला कौन होगा जिसकी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो। आज के दौर में ऐसा अल्लाह वाला कौन होगा जिसकी असर की सुन्नत कज़ा ना हुई हो। और आज के दौर में ऐसा अल्लाह वाला कौन होगा कि बिना वुज़ू जिसने आसमान की तरफ निगाह ना उठाई हो। जनाजा रखा हुआ है, हवाएं चल रही हैं, आसमान का सूरज भी आज मुस्कुरा रहा है कि एक अल्लाह वाले की विलायत आज लोगों के सामने आश्कारा होने वाली है। आसमान के फरिश्ते भी आज मुस्कुरा रहे हैं कि एक अल्लाह वाले की विलायत आज लोगों के सामने चीख चीख करके कहेगी कि मैं वो छुपा हुआ वली हूँ कि तुम मुझे सिर्फ बादशाह समझते थे, लेकिन अल्लाह ने मुझे वो विलायत अता की थी जिसकी भनक और ख़बर भी तुम्हें नहीं लग सकती थी। अगर आज मेरे पीरो मुर्शिद दुनिया से ना जाते तो मेरी विलायत आज भी छुपी हुई होती। अल्लाह के नेक बंदों से हर ज़माने में चिढ़ने वाले और उनसे हसद रखने वाले लोग मौजूद होते हैं। जब ये ऐलान किया मुरीद ने कि आखिरी वक्त में हुजूर का कुतुबुद्दीन काकी बख्तियार ने ये वसीयत की थी कि मेरी जनाजा की नमाज वो पढ़ाएगा जिसके अंदर ये सिफतें होंगी, तो अब वहाँ पर एक इंतशार भरा माहौल हुआ और एक दूसरे की लोग सूरतें देखने लगे कि आखिर कौन होगा जिसके अंदर इतनी सिफात मौजूद होंगी कि ना उसकी तहज्जुद की नमाज कभी छूटी होगी, ना उसकी असर की सुन्नत कभी छूटी होगी, और ना ही बिना वुज़ू कभी वो आसमान की तरफ निगाह उड़ाया होगा। उसी जमात में कुछ औलिया इकराम मौजूद थे। वो कहते हैं कि हज़रत ने ऐसी शर्त लग दी कि आज के दौर में तो मालूम नहीं पड़ता कोई इस शर्त का जामे मौजूद भी होगा या नहीं होगा, लिहाजा कोई भी शख्स आगे बढ़ कर के अल्लाह वाला नमाज पढ़ा दे। लेकिन हज़रत कुतुबुद्दीन काकी बख्तियार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वो मुरीद जो आखिरी वक्त में हज़रत के साथ थे, उन लोगों ने सख्ती के साथ इनकार किया और कहा कि जब मेरे हज़रत ने ये फरमाया है तो वो शख्स हमारी जमात में ज़रूर मौजूद होगा, इंतज़ार करो, अनकरीब वो शख्स निकल करके आएगा। वक्त गुजरता रहा, घंटे पे घंटे गुजरते रहे, मिनट पे मिनट गुजरते रहे। एक औलिया इकराम से चढ़ने वाला आया और कहा कि आज भी कोई भला ऐसा शख्स मौजूद है। पहले ही वो औलिया इकराम की हिज्ब करता था, पहले ही वो औलिया इकराम का मजाक उड़ाता था, और आ करके हज़रत शमसुद्दीन अल्तमश के सामने खड़े होकर के कहता है क्या आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं? मैं तो नहीं मानता आज ऐसे लोग मौजूद हैं। तो हज़रत शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह वक्त उस शख्स का हाथ पकड़ करके कहते हैं कि आज भी ऐसे अल्लाह वाले मौजूद है, चल तू मेरे पीछे, मैं नमाज पढ़ाता हूँ और सारे लोग आज नमाज पढ़ेंगे। जब बादशाह का नाम आया तो लोगों में एक बरपा इंतशार हो गया कि क्या अल्लाह वाला ऐसा बादशाह कोई मौजूद है कि जो हिंदुस्तान के तख्त पर हुकूमत करे और उसकी असर की सुन्नत ना छूटी हो, जो तख्त ताज का वारिस हो और उसकी रातों की तहज्जुद कज़ा ना हुई हो, जो अल्लाह के नेक बंदों में इस तरह शामिल हो कि वो बिना वुज़ू आसमान की तरफ नजर ना उठाया हो। यही इंतशार मचा हुआ था कि हज़रत कुतुबुद्दीन काकी बख्तियार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये खलीफा और ये मुरीद शमसुद्दीन अल्तमश ये मुसल्ले पर पहुंचता है और मुसल्ले पर पहुंच करके नमाज पढ़ाता है और ये जाहिर कर देता है वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर कि शमसुद्दीन अल्तमश जहां भी था, जो भी काम करता था, दुनिया की परवाह नहीं करता था। ये जरूर सोचता था कि अल्लाह उसे देख रहा है। अगर वो खलवत में है तो अल्लाह उसे देख रहा है, अगर वो जलवत में है तो अल्लाह उसे देख रहा है, महल की काल कोठरी में है तो अल्लाह उसे देख रहा है, बीवी के साथ बिस्तर पर है तो अल्लाह उसे देख रहा है, बादशाह के दरबार में है तो अल्लाह उसे देख रहा है, काजी के मनसबे कज़ात पर है तो अल्लाह उसे देख रहा है, अगर किसी को पानी पिला रहा है तो अल्लाह उसे देख रहा है, अगर किसी को खाना खिला रहा है तो अल्लाह उसे देख रहा है। और फिर नमाज जनाजा पढ़ने के बाद हजरत कुतुबुद्दीन काकी बख्तियार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पैरों के पास आकर के खूब रोते हैं और कहते हैं हजरत आज आपने मेरी विलायत का पर्दाफाश कर दिया, आज आपने मेरी विलायत का पर्दाफाश कर दिया। क्या ही अच्छा होता कि जैसे मेरी विलायत छुपी हुई थी आज भी उसी तरह छुपी हुई होती, लेकिन अल्लाह वालों की कुछ और हिकमत और कुछ और मंशा होता है। हज़रत कुतुबुद्दीन काकी बख्तियार रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैह ने अपनी विलायत से ये जाहिर कर दिया कि देखो तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी असर की सुन्नत नहीं छूटी है, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी रातों की तहज्जुद नहीं कज़ा हुई है, तुमने कभी नहीं बताया कि बिना वुज़ू तुमने आसमान की तरफ नहीं देखा है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे शागिर्दों में एक शागिर्द ऐसा है जो आसमान की तरफ देखता है तो वुज़ू बना करके देखता है, जो रात की तारीकियों में जागता है तो तहज्जुद के लिए जागता है, जो दिन के उजालों में असर की नमाज पढ़ने पहुंचता है तो पहले सुन्नत अदा करता है, उसके बाद फर्ज नमाज पढ़ता है। हजरत कुतुबुद्दीन काकी बख्तियार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने तमाम शागिर्दों में एक शागिर्द की तरफ ज्यादा तवज्जो फरमाई, और वो ज्यादा शागिर्द कौन है? वो हजरत शमसुद्दीन अल्तमश है। वल्लाहु माकुम ऐनमा कुंतुम, शमसुद्दीन अल्तमश जहां जहां भी थे दिल में यही यकीन था मेरी रियाया मुझे देखे ना देखे, खालिक जो अल्लाह तबारक व तआला है वो मुझे जरूर देख रहा है। वह हुआ माकुम, जहां कहीं भी तुम जाओगे अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अरब के देहातियों में
ایک شخص تھا، رات میں کہیں جا رہا تھا. رات کی تاریکیوں میں ایک عورت نکلتی ہے، وہ بھی راستہ طے کرنے لگتی ہے. اب یہ جو شخص تھا دیہاتی، اس کا من بدلنے لگا اس عورت کو دیکھ کر، اور اس کے دل میں برے برے خیالات پیدا ہونے لگے. راستہ چلتے چلتے یہ اس عورت کو برے کام کی طرف آمادہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ عورت ہر چند یہ کہتی ہے کہ فلاں دیکھ لے گا، فلاں دیکھ لے گا، فلاں دیکھ لے گا. لیکن جب وہ شخص نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ یہاں تو ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھتا، تو آخر میں وہ عورت کہتی ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس کا یہ ایک جملہ، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس شخص کی پوری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے. وہ ایک شخص ایک جملے سے اپنی پوری زندگی بدل دیتا ہے. وہ ایک شخص اس عورت کے ایک جملے سے اپنی گناہوں کی پوری زندگی کو اس طرح تبدیل کرتا ہے کہ اپنی صبح کو، اپنی شام کو، اپنے دن کو اور اپنے رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں وہ لگا دیتا ہے. یہ چند واقعات ہم نے اولیاء اکرام کے آپ کے سامنے رکھے، جن واقعات سے ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا.